So students, we are starting class 6, chapter number 11, science, that is light, shadows and reflection. Okay, in the previous video we have seen some topics which are shown on the screen. Okay, we have seen the meaning of luminous object. Luminous object means what? Objects which can emit light of their own is called as luminous object. For example, torch, sun, candle. These are examples of luminous object. After that we have studied non-luminous object. Non-luminous object means which cannot emit light of their own. For example, earth is a non-luminous object. इसके बाद में there are different planets which are non-luminous object. उसके बाद में चेयर नॉन ल्यूमिनस है, उसके बाद में रॉक्स नॉन ल्यूमिनस है. सो वी हैव सीन डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. अभी व्हाई वी कैन सी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? वी कैन सी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट इमिटिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट एंटर आवर आइज, है ना. दैट इज व्हाई वी कैन सी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. And why we can see non-luminous object? Because light emitted by that particular source fall on that object. After that it enter our eyes. That is why we can see non-luminous object. Okay, that we have seen in the previous lecture. After that we have studied about transparent, opaque and translucent object. Okay, what is the meaning of transparent object? The object through which light can pass. The object through which light can pass is called as transparent object. The object थ्रू विच लाइट कैनॉट पास, मतलब लाइट उसके ऊपर गिरता तो है लेकिन उसमें से नहीं जा सकता है, देन इट इज कॉल्ड एज ओपेक ऑब्जेक्ट. एंड द सब्सटेंस थ्रू विच पार्शियल लाइट कैन एंटर, not all but partial light can enter, is called as translucent object. Okay, that we have also seen in the previous period. Now we are moving to the next topic. Okay, what is it? Let us see. What exactly are shadows? अभी आप सभी ने shadows देखी है. मैं यहाँ पे अगर ऐसी टिक के खड़ी रहती हूँ तो आप देखोगे मेरे पीछे मेरी shadow गिरी है ना. ये बोर्ड है मेरा, बोर्ड के ऊपर मेरी उंगलियों की shadow आपको दिख रही है. Okay, how these shadows are formed, that we are going to discuss now. Okay, let us see the discussion first. We are going to see activity 2. Now one by one hold each of the opaque object in the sunlight and slightly above the ground. Slightly above the ground, what do you see on the ground? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लाइट में देखते हो, जैसे हम पीछे देखेंगे अभी कि ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, इसके ऊपर अगर मैं मेरा हैंड ऐसे रखती हूँ तो क्या आपको इसके नीचे डार्क शेडो दिख रही है? एक्चुअली ये इतनी डार्क नहीं है बिकॉज नीचे का सरफेस कैसे वाइट है अपना, है ना. तो ये जो दिख रहा है नीचे, आपने खेले होंगे ना आप ऐसे कई तरह के अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स. हम ये थोड़ा सा तोते जैसा लग रहा है क्या? आई एम नॉट श्योर, बट ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं ना. वाई? बिकॉज मेरा हैंड कैसे, दिस इज एन ओपेक सब्सटेंस, इसमें से लाइट पास नहीं हो सकता है ना. तो ऐसे सब्सटेंसेस से जब लाइट क्या होता है, उसका पाथ जब रोका जाता है तो दिस ऑब्जेक्ट फॉर्म शैडोज ऑन दी surface. Okay, so we are going to learn about how shadows are formed and which things are necessary for the formation of shadow. Okay, sometimes you can identify the object by looking at its shadow. अभी ये देखो एक important concept है कि shadow, कई बार आप object के ऊपर से shadows क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो. See, spread a sheet of paper on the ground. Hold familiar opaque objects at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friends to draw the outlines of the shadows while you are holding the object. Draw outlines of the shadows of other objects in the similar way. Okay, अभी यहाँ देखो तो suppose ये shadows है, ये shadows के ऊपर से कैन यू आइडेंटिफाई ये किसकी शेडो है? फॉर एग्जाम्पल चलो गेस करते, ये शेडो किस चीज़ की है? इजीली यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज़ द शेडो ऑफ व्हाट? इट इज़ द शेडो ऑफ ए बर्ड, है ना. दिस
दिस मे बी द शेडो ऑफ एनी वन ऑफ योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड जो आपके बाजू में खड़ा है उसकी शेडो हो सकती है। दीज आर शेडोज ऑफ ट्रीज, दो ट्रीज है या एक ही ट्री है ये, है ना, उसकी शेडो है। ये शेडो किसकी हो सकती है? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स आप शेडो के ऊपर से पहचान सकते हो, बट नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स। जैसे ये जो शेडो है, ये नोटबुक की शेडो हो सकती है, ये बुक की शेडो हो सकती है ना। तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है इस केस में कि ये शेडो किस चीज़ की है। ओके, सो इन सम केसेस शेडो इज आइडेंटिफाइबल, इन सम केसेस इट इज़ अनआइडेंटिफाइबल। ओके, मैं आपको कुछ शेडोज दिखाऊंगी, उसके ऊपर से आपको आइडिया आएगी। मतलब एक आर्टिस्ट है, wait for a minute. So students, can you see this shadow? What does the shadow appears to you? This is the shadow. Okay, what does this indicate? It indicate that it is the picture of what? Goddess दुर्गा, है ना। दुर्गा माता का अगर आपने पिक्चर देखा होगा तो वो ऐसे ही दिखता है ना, आपको दिखता है कि नहीं दिखता है। लेकिन उसके आगे ऑब्जेक्ट देखो क्या है, इधर कहीं तो भी, इधर के साइड में कहीं तो भी आपका सोर्स ऑफ लाइट होगा। उसके आगे देखो वो जो आर्टिस्ट है उसने कई अजीबोगरीब चीज़ें क्या की है, खड़ी की है ना। और ये सारी चीज़ों का कंबाइन इफेक्ट आपको ये दीवार के ऊपर दिखाई दे रहा है। ओके, सो व्हाट इज दिस, व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट दैट दिस इज द ओवरऑल, दिस इज द कंबाइंड शेडो, दिस इज वॉट, दिस इज द कंबाइंड शेडो ऑफ ऑल दिस इफेक्ट्स, है ना। ये सारी चीज़ों का कंबाइनली इफेक्ट बना के ये शेडो आपको मिल रही है। शेडो किसी और चीज़ की लग रही है लेकिन एक्चुअल में वो है किसी और चीज़ की, है ना। आपको पिक्चर से, मतलब हर बार पिक्चर को की शेडो देख के आपको उसकी 100% आइडिया नहीं आएगी कि ये शेडो किस चीज़ की है। ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन गेस दैट समटाइम्स द शेडो इज आइडेंटिफाइबल, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किस चीज़ की शेडो है, एंड अदर टाइम्स यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट विच शेडो इट इज फॉर्म्ड। ओके, let us move to our chapter. Do you observe your shadow in a dark room or at night when there is no light? Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in the room? It seems we need a source of light. We need a source of light and an opaque object to see a shadow. ओके, शेडो अगर आपने ऑब्जर्व की होगी तो उनको दो चीज़ें तो कंपलसरी चाहिए। कौन सी चीज़ें चाहिए? इफ़ यू वांट टू फॉर्म ए शेडो, टू थिंग्स आर नेसेसरी. व्हाट आर दे? नंबर वन इज टू ड्रॉ ए शेडो यू नीड, नंबर वन इज सोर्स ऑफ लाइट. यू नीड व्हाट? सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है? ऐसी कोई चीज़ चाहिए जिसमें से लाइट इमिट कर रहा हो, लाइट बाहर निकल रहा हो. जैसे कि ट्यूबलाइट हो सकता है, उसके बाद में कैंडल हो सकती है, उसके बाद में अगर आप ग्राउंड पे हो तो सन हो सकता है. ओके, सो जहाँ से लाइट इमिट हो रही है ऐसी एक चीज़ आपको चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ लाइट. ओके, और दूसरी चीज़ आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगेगा जिसकी शेडो बन रही है, हाँ, एंड इट शुड बी एन ओपेक ऑब्जेक्ट. दूसरी चीज़ आपको चाहिए ओपेक ऑब्जेक्ट. याद है मैंने इसके पहले के पीरियड में आपको बताया था कि यू कैन नॉट गेट ए शेडो फ्रॉम ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. अगर एयर है सपोज आपके सराउंडिंग में, एयर की शेडो नहीं मिलती है. वाटर किसी ग्लास में रखा है, ग्लास की शेडो मिलेगी आपको, वाटर की शेडो नहीं मिलती है. इवन ग्लास भी अगर आपका विंडो पेन है ग्लास से बना हुआ तो आपको उसकी शेडो नहीं मिलेगी, सिर्फ उसके फ्रेम की शेडो मिलेगी. वाई? बिकॉज शेडोज हमें किस चीज़ की मिलती है? वी गेट शेडोज ऑफ ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट. ओके, सो वी नीड टू थिंग्स. नंबर वन इज सोर्स ऑफ लाइट एंड नंबर टू इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट. सिर्फ दो ही चाहिए क्या? और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको शेडो बनाने के लिए चाहिए. कौन सी? यू नीड स्क्रीन. वॉट यू नीड? यू नीड स्क्रीन. ओके, आपको शेडो बनाने के लिए तीसरी चीज़ कौन सी चाहिए? यू नीड स्क्रीन. ओके, कैसे? हम ये नीचे के एक्टिविटी में देखेंगे. सी एक्टिविटी 3. दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क. ये आपने करके भी देखी होगी, मतलब कभी अगर लाइट जाती है आपके एरिया में तो कुछ किया है क्रिएटिव आपने शेडो लाइट के साथ में.
In the evening, go out in the open ground with your friends. Take a torch and large sheet of cardboard with you. Hold the torch close to the ground and shine it upward so that its light fall on your friend's face. You now have a source of light that is falling on an opaque object. एक ये लो, क्या, एक आपका फ्रेंड लो, एक कार्डबोर्ड लो, एक टॉर्च लो और अंधेरा लो, मतलब इवनिंग के टाइम पे, रात के टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है. बाहर टॉर्च क्या करना है आपको, आपके फ्रेंड के मुंह के ऊपर मारना है और उसके पीछे देखो शैडो फॉर्म हो रही है क्या. दो चीज़ें आपके पास है, कौन कौन सी, टॉर्च है मतलब यू आर हैविंग ए सोर्स ऑफ लाइट, आफ्टर दैट आपका फ्रेंड है जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और पीछे देखो तो शैडो फॉर्म हो रही है क्या, नो, द शैडो विल नॉट फॉर्म. ओके, नाउ व्हाट यू डू, यू पुट ए कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड लो और आपके दोस्त के पीछे रखो. ओके, नाउ ऑब्जर्व, आर यू गेटिंग एनी शैडो? In that case, you will get a shadow. Okay, you now have a source of light that is falling on an opaque object. If there were no trees, building or any other object behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? No. This does not mean there is no shadow there. देखो यहाँ पे इस गर्ल के हाथ में एक टॉर्च है ना, और ये क्या कर रही है, पिक्चर अपने फ्रेंड की इमेज लेने की कोशिश कर रही है. जब उसके हाथ में कुछ नहीं था, मतलब पीछे वाली गर्ल के हाथ में अगर कार्डबोर्ड नहीं होगा तो शैडो फॉर्म तो तभी भी होगी, लेकिन वो शैडो किसी चीज़ के ऊपर ये नहीं हो रही है, गिर नहीं रही है, तो सो यू कैन नॉट सी द शैडो इन दिस केस. ओके, इट डज नॉट मीन्स दैट देयर इज नो शैडो. आफ्टर ऑल, द लाइट from the torch is not able to pass through the body to the other side. जो लाइट है वो क्या हो रहा है, यहाँ से तो गिर रहा है, देखो लाइट यहाँ से गिर रहा है, यहाँ तक जा रहा है. ये पर्सन के पीछे लाइट जा रहा है क्या, पास हो रहा है क्या, नहीं, द लाइट इज नॉट पासिंग द पर्सन. इट मीन्स दैट शेडो इज फॉर्मिंग देयर, बट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो द थर्ड थिंग इज नेसेसरी. व्हाट इज इट, द स्क्रीन. कोई तो भी चीज़ चाहिए जिसके ऊपर शेडो क्या हो सके, फॉर्म हो सके. ओके, now ask another friend to hold the cardboard sheet behind your friend. Is the shadow now seen on the cardboard sheet? Yes, as shown in 11.3 diagram. When a friend put a cardboard behind his friend, then only the shadow will be formed on it. Okay. Thus, shadow can be seen only on a screen. शैडो आपको कहाँ पे दिखेगी, शैडो इज सीन ओनली ऑन द स्क्रीन. अगर स्क्रीन है तो ही ऑब्जेक्ट की शैडो आप देख सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट सी द शैडो ऑन द स्क्रीन. यहाँ पे कुछ शैडोज दिखाई दी है, हम इसकी क्लियर इमेज देखेंगे. सी, ये एक्टिविटी आप घर पे अंधेरे में करके देख सकते हो. जब रात को लाइट वगैरह जाती है, आप कैंडल वगैरह जलाते हो, तो पूरा डार्क रूम चाहिए, उसके लिए अंधेरा चाहिए टोटल, और एक कैंडल चाहिए. कैंडल या टॉर्च यू कैन ऑल्सो यूज. उसके आगे आप क्या करो, दीवार जो है आपकी, उसके आगे आपके उंगलियों से आप कुछ अलग अलग शेप्स बना सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल ये शेप मैंने यहाँ पे बनाया था, आपको याद है, लाइक दिस, कोई शेप फॉर्म होता है ना. तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप स्क्रीन मतलब लाइट का यूज़ करके आपकी जो हैंड से आप अलग अलग एनिमल्स के शेप बना सकते हो. यहाँ पे पिक्चर में देखो दिख रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे कौन है, ये बर्ड जैसा शेप दिख रहा है. ये this is the shape of what, I think so, camel. This is a shape of bird. Okay, there are different shapes shown in this picture. ये देखो डक के बिल जैसा शेप बनाया है ये स्टूडेंट ने फ्रेम के ऊपर. ओके, अभी यहाँ पे लाइट इधर से सामने से आ रहा होगा, इसका हैंड जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, और स्क्रीन के ऊपर ये जो है ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर क्या हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है. ओके, सो दिस वाज द थिंग. By doing this activity, you can make variety of objects by using your hands. Shadows of variety of object by using your hand. Okay. Let us move to the topic now. What does this it means? It means that shadows can be only seen on the screen. Shadows देखने के लिए screens ज़रूरी है. The ground,
the walls of room, then a building or other such surfaces act as a screen for the shadows you observe in your everyday life. आप ग्राउंड पे खेलने जाते हो तो सन जहाँ पे प्रेजेंट होता है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको आपकी शेडो दिखती है ना, दिखती है कि नहीं? तो सन है, आप मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट, और जो नीचे का ग्राउंड है, ग्राउंड एक्ट लाइक ए स्क्रीन. ग्राउंड एक्ट लाइक ए व्हाट? It act like a screen to show you the shadow of yourself. Okay, now see the next paragraph. Shadows gives us some information about shapes of object. Sometimes shadows can also mislead us about the shape of the object. अभी देखो तो ये important चीज़ है हाँ, कि shadows हमेशा ही correct information नहीं देती हैं. Sometimes they give us information about the shape of object. जैसे कोई triangular object है तो उसकी shadow कैसी बनेगी? ट्रायंगुलर बनेगी. इट इज़ पॉसिबल, बट समटाइम्स शैडोज कैन मिसलीड अस. मिसलीड का मतलब हमें फंसा भी सकती है. शैडोज कैसे फंसा सकती हैं? देखते हैं नीचे के इसमें फिगर 11.4. इन फिगर 11.4 आर फ्यू शैडोज दैट वी कैन क्रिएट आउट विथ अवर हैंड्स एंड मेक बिलीव दैट दे आर शैडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. हैव फन. ये जो एक्टिविटी है, हमने हमारे हाथों से क्या किया, अलग अलग एनिमल्स के फेस ये बनाए ना, शेप्स बनाए ना. सो ये रियल थे क्या? नो, दे वर नॉट रियल, बट दे अपीयर लाइक रियल. सो दे कैन मिसलीड ऑल्सो. ओके, जैसे आपके यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आध बॉल अगर हमने कंसिडर किया, बॉल की इमेज ऐसी आएगी, इमेज नहीं, शेडो. शेडो कैसी आएगी उसकी? रेड कलर की नहीं आएगी, लेकिन राउंड आएगी ना, है ना. अगर मैंने इसके जगह पे सपोज एक सिलेंडर के शेप का ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, लेट मी चेक इफ आई एम हैविंग एनी वन. आर यू सीइंग दिस ऑब्जेक्ट? दिस इज ए सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट. ओके, सो इफ आई एम यूजिंग दिस लाइक दिस, अगर मैंने ऐसा इसको सरफेस के ऊपर रखा, फॉर एग्जाम्पल, इसकी इमेज नहीं दिख रही है ना, इट इज़ वेरी स्मॉल टू मेक इमेज, लेकिन ये इमेजिन करो कि ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे है. ओके, आपको दिख रहा है. ये अगर मैंने ऐसे रखा ना, लाइट के सोर्स के आगे अगर मैं इसे ऐसे रखती हूँ ना, तो इसकी इमेज देखो मुझे ऐसे मिलेगी, स्फेरिकल मिलेगी. सर्क्यूलर, नॉट स्फीयर. स्फीयर नहीं मिलती है अपने को ग्राउंड के ऊपर, स्फेरिकल मिलेगी. यही ऑब्जेक्ट अगर मैंने ऐसा रखा, इन दिस वे, अगर मैंने इसको ऐसा अगर रखा, तो पता है इसकी शैडो कैसे मिलेगी? इसकी शैडो आपको ऐसे मिलेगी, ऐसी रेक्टेंगुलर शेप की शैडो मिलेगी. ऑब्जेक्ट सेम है, उसका अलाइनमेंट चेंज किया तो आपको उसकी शैडो कैसी मिल रही है? अलग टाइप की मिल रही है. तो ऐसे हो सकता है कोई राउंड कलर का, राउंड शेप का ऑब्जेक्ट है. अब ये तो राउंड है ना, दिस इज राउंड ऑब्जेक्ट, बट इसकी शैडो आपको कैसे मिली? यू गेट द शैडो rectangular. You get which kind of shadow you get? You get a rectangular shadow. Okay, so shadows can be misleading. They do not give us the exact idea. कुछ बातें ध्यान में रखो कि शैडो से आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं आती है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसे होगा. ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट आइडिया आपको इमेज पे से आ सकती है, शैडो पे से उसके बारे में आपको क्या करना पड़ता है? गेसिंग करना पड़ता है. ओके, शैडोज गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. समटाइम्स shadows can also mislead us about the shape of the object. In figure, there are few shadows that we can create with our hands and make believe that they are shadows of different animals. Okay, have fun. Let us move to activity 4. अभी activity 4 देखो. We are going to do some detailed study about shadows. Okay, place a chair in the school ground on a sunny day. What do you observe from the shadow of a chair? चेयर की शैडो से आप आइडिया लगा सकते हो उसकी, मतलब शैडो के ऊपर से कि शेप कैसे होगा. क्या पूरा शेप दिखता है शैडो का? मतलब उसमें शैडो में अगर सन एग्जैक्ट ऊपर रहा ना, इमेजिन करते हैं अपन, सन अगर एग्जैक्ट ऊपर रहा ना, तो आपको शैडो ऐसे मिलेगी कुछ तो भी. एग्जैक्ट सर के ऊपर रहा तो चेयर के एग्जैक्ट नीचे मिलेगी. बराबर है ना? क्या चेयर ऐसे दिखती है? अगर सन इधर के साइड में होगा तो आपको फिर से चेयर के
ये इधर पैर कैसे दिखेंगे, लंबे लंबे दिखेंगे, है ना। अगर सन इधर होगा तो और उसका शेप कैसे आएगा, थोड़ा सा चेंज होगा। सो यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। एक्यूरेट शेप मिलता है क्या, नहीं। आपने आपकी शैडो के बारे में कुछ कंपैरिजंस किए हैं कि हम ड्रॉ करते हैं। सपोज मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, सपोज एक बॉय है, क्योंकि मेरी ड्राइंग आपको पता है ना कैसी है। ओके, अभी सन की पोजीशन जैसे चेंज होती है ना, वैसे शेडोज़ भी चेंज होती है। अगर सन यहाँ पे रहेगा ना, सपोज ये सन है, तो उसकी शैडो पता है कैसी आएगी, इधर के साइड में मिलेगी, इसके स्ट्रेट लाइन में यहाँ तक की लंबी, ऐसी मिलेगी ना, लंबी मिलेगी। ओके, सन अगर यहाँ पे गया, फिर से अंडू करते हैं इसको, सन की पोजीशन भी अंडू करते हैं। सन अगर यहाँ पे रहा तो शैडो पैरों के नीचे आएगी। सन अगर यहाँ पे रहा तो शैडो ऐसी टेढ़ी आएगी। ऑब्जर्व किया है आपने, सन की प्लेस जैसे जैसे चेंज होती है, शैडो चेंज होती है, शैडो का शेप चेंज होता है, शैडो की लेंथ चेंज होती है। अगर आप कंपेयर करोगे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में शैडोज़ लंबी आती है, मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा लंबी आती है। अगर आप इवनिंग टाइम कंसिडर करो तो शैडोज़ अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, फिर से वो कैसी आएगी, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन में लंबी आएगी। और दोपहर के समय में शैडोज़ कैसी आती है, शॉर्ट आती है। ओके, सो इट डू नॉट गिव अस द करेक्ट आइडिया about the length, size, shape of object. Okay, place a chair in the school ground on a sunny day. What do you observe from the shadow of the chair? Does the shadow gives us accurate picture of the shape of the chair? If the chair is turned around a little, how does the shape of object change? थोड़ी सी भी चेयर चेंज की, शेप उसका अगेन चेंज हो जाएगा। टेक ए थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शैडो। Then take a rectangular box, look at its shadow. Do the two shadows seem to have similar shape? नोटबुक का की शैडो लो, रेक्टेंगुलर बॉक्स की शैडो लो, टेबल टॉप की शैडो लो, आपको सारे रेक्टेंगल मतलब शेप सेम मिलेगा। सो यू कैन नॉट जज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स शैडो। ओके, नाउ नेक्स्ट, टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स and look at their shadows. Red rose और yellow rose for example, उनकी शैडो कैसी आती है, शैडो में कलर दिखता है आपको, कैन यू सी द कलर इन द शैडो, नो। डू द शैडोज लुक डिफरेंट इन कलर when the colors of objects are different? No, you do not get different colors in shadow. Shadows are only of single color, that is dark. Okay, take a long box and look at its shadow on the ground. When you move the box around, you may see that the size of shadow changes. Box है, यहाँ पे रखो उसको और ऐसे अगर मूव करते हो ना आप, तो you will see that there is different in shapes of object, in shadows of object. When the long side of the box is pointed towards the sun and when the short side is pointed towards the sun, there is the difference in the shadow. Let us use this long box to prepare a simple camera. ये जो बॉक्स आपने यूज़ किया, एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इससे आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम पहले लिख लेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, इस बॉक्स की तरफ जाएंगे। ओके ओके, शैडो के बारे में कौन सी चीज़ें हम बता सकते हैं। पहली चीज़, शैडो फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड फॉर फॉर्मेशन ऑफ शैडो, यू नीड ए सोर्स ऑफ लाइट, you need a source of light. Okay, this is the first thing you need for the formation of shadow. Second cheese you need is an opaque object. An opaque object. Transparent नहीं चलेगा क्या, no, transparent object do not form shadow. Second thing you need is an opaque object, and third thing you need is what, you need a screen. ये तीन चीज़ें चाहिए आपको अगर शैडो फॉर्म करनी है तो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट थिंग आपको ध्यान में क्या रखनी पड़ेगी कि शैडोज आर ऑलवेज डार्क इन कलर, दे आर डार्क इन कलर, शैडोज डू नॉट शो एनी कलर, they are always dark in color, and their shape then size, what it
changes. Okay, so these are some things related to shadows. Now we are going to make a simple instrument by using which you can see what we are going to make a simple camera to show the shadow of particular object. Let us see. ए पिन होल कैमरा, इंस्ट्रूमेंट का नाम है ए पिन होल कैमरा. देखो क्या है. श्योरली वी नीड ए लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्टफ टू मेक ए कैमरा. कैमरा बनाना कॉम्प्लिकेटेड होगा बहुत, है ना? नॉट रियली. वी जस्ट विश टू मेक ए सिंपल पिन होल कैमरा. हमें एक बहुत ही सिंपल सा पिन होल कैमरा यहाँ पे डिज़ाइन करके देखना है. कौन सा कैमरा? पिन होल कैमरा. नाम में ही है कि उसमें एक छोटा सा पॉइंट जितना होल है. ओके, देखते हैं क्या करना है. Take two boxes so that one can slide into another with no gap between them. आपको दो बॉक्सेस लेने हैं. बॉक्स मतलब जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप शू बॉक्स होता है ना, जिसमें शूज़ लाते हैं, वो बॉक्स की साइज़ जो है वैसा कोई तो भी एक बड़ा सा बॉक्स लो. लिया. अभी ये बॉक्स में बैठना चाहिए ऐसा कोई तो भी उससे छोटा बॉक्स लो, जो इजीली मतलब एग्जैक्ट फिट नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन बड़े बॉक्स के कंपैरिजन में छोटा चाहिए. ऐसे मैंने दो बॉक्सेस लिए. ये जो अंदर का बॉक्स है ये आप क्या कर सकते हो, अंदर बाहर इसे सॉरी मूव कर सकते हो. ओके, एक बॉक्स लिया था. ये जो बाहर का बॉक्स है आपका, ओके, वो बाहर की जो बॉक्स है उसकी ये वाली साइड देखो, आपकी ये साइड जो मैंने ड्रॉ की है, इधर की साइड हमने काट डाली. ये जो साइड है ना मैंने जहाँ पे मार्क किया, वो साइड आप उसको कट कर डालो. मतलब इधर के साइड से आपका ये बॉक्स कैसे है, ओपन है. ओके, उसके बाद में जो ये वाली साइड है इसकी, ये साइड यहाँ पे एक रेक्टेंगल प्रेजेंट होगा ना. मेरे स्क्रीन में नहीं दिख रहा है रेक्टेंगल, लेकिन ये ऐसा रेक्टेंगल होगा. ओके, है ना. ये रेक्टेंगल के सेंटर में एक होल करो, सॉरी एक सेंटर में पहले क्या करो, थोड़ा सा उसको काट डालो, सर्कल काटो. काटा. उसके बाद में एक जो अपनी ये होती है ना टिस्को टेप, या जो अपन वायरिंग के ऊपर लगाने वाला जो टेप होता है एक ब्लैक कलर का, वो टेप इसको क्या करो स्टिक कर डालो ऊपर से, जिसके वजह से इसकी फिटिंग अच्छे से आएगी. और बाद में इसके ऊपर एक छोटा सा जो टाचनी होती है ना अपनी, बहुत ही पॉइंटेड नीडल, उससे इसको जैसे मैंने एक छोटा सा डॉट दिया, इतना छोटा होल आपको क्या करना है, बनाना है. ठीक है, फिर से देखो. एक बॉक्स लिया, बॉक्स की एक साइड कट कर डाली, और यहाँ पे बहुत छोटा सा पॉइंटेड आपने क्या बनाया, होल बनाया. ठीक है, बहुत छोटा सा पॉइंटेड होल, मतलब ये जो इसको है ऐसे एक छोटे से पिन से क्या किया आपने, अटैच किया. ठीक है, बाद में टेक अनदर बॉक्स, दूसरा बॉक्स लो. लिया. Students, we are going to make a pinhole camera. Okay, see activity 5. Take two boxes so that one can slide into another with no gap in between them. Cut open one side of each box. On the opposite face of larger box, make a small hole in the middle, and in the smaller box cut out from the middle square with a slice of about 5 to 6 centimeter. Cover this open square in the box with a tracing paper, that is translucent paper, and slide the smaller box inside the larger one with the hole in such a way that the side with the tracing paper is inside. Your pinhole camera is ready to use. देखो कैसे. एक बॉक्स लो बड़े साइज का. वो जो बॉक्स है उसको एक साइड से आपको क्या करना है, एक साइड से ओपन कर दिया आपने इसको. देखो दिस साइड जो है ना, दिस साइड इज ओपन. ओके, और ये जो पीछे की साइड है, ये पीछे की साइड में आपको क्या करना है, बॉक्स के एग्जैक्ट मिडल में एक छोटा सा होल आपको करना है. एक सिंगल पॉइंट देना है, मेरे जैसे 4-5 मत दो. ओके, एक सिंगल पॉइंट आपको बीच में क्या करना है, देना है. ठीक है, बाद में दूसरा बॉक्स लो,
वो दूसरे बॉक्स को आपको क्या करना है, उसका जो रेक्टेंगुलर सामने वाला पार्ट था उसको बीच में से आपने कट किया और यहाँ पे आपने रखा एक ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर पता है ना आपको, जो मिठाई के बॉक्सेस वगैरह में वो वाइट कलर का पेपर आता है ना, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, वो ट्रांसल्यूसेंट होता है एक्चुअली। वो जो है उसको कट करके यहाँ पे एक आपने रेक्टेंगल काट के उसके ऊपर चिपका दिया। ठीक है, अभी ये जो बॉक्स है आपका ग्रीन कलर का, ये आप डालोगे आपके ब्राउन कलर के बॉक्स में और उसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा आगे पीछे मूव करना है। ओके, ऐसे इस डायग्राम में जैसे दिखाया है वैसे। और देखो कहीं पे, मतलब विंडो के बाहर अगर आप देखोगे कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो ये जो वाइट कलर का आपका पेपर है इसके ऊपर आपको क्या दिखेगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। बहुत सिंपल सा वीडियो है। मैं इसके बाद में आपको क्या करने वाली हूँ, अपने ग्रुप पे पिन होल कैमरा की एक एक्टिविटी डालने वाली हूँ, जिसको देख के आप पिन होल कैमरा बना सकते हो और वो एक्चुअली आपको बना के उसका फोटो क्या करना है, अपने ग्रुप के ऊपर डालना है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज पिन होल कैमरा। नाउ सी, holding the pinhole camera, look through the open space of the smaller box। जो smaller box है उसके आप क्या करो, open space में देखो। You should use a piece of black paper to cover your head or the pin and the pinhole camera। क्यों? क्योंकि अगर डार्कनेस है तो ही आपको इसकी इमेज क्या दिखेगी, क्लियर दिखेगी, अदरवाइज यू विल गेट ए फेंट इमेज। Now try to look at some distant object like a tree or a building through a pinhole camera. Make sure that your objects you wish to look at through your pinhole camera are in bright sunshine. Move the smaller box forward and backward till you get the picture on the tracing paper pasted at the other end. Are these pinhole images different from their shadows? ये जो दिख रहा है अभी आपको, अभी ये शेडो है क्या पिन होल कैमरा में से जो दिखती है आपको? अभी ये क्वेश्चन के आंसर हम तभी दे सकेंगे जब हम खुद का पिन होल कैमरा बना के ये ट्राई करेंगे, है ना। तो हम पहले पिन होल कैमरा बनाते हैं। थोड़ी सी हिंट देती हूँ आपको कि ये जो इमेजेस हमें दिखते हैं ना, दे आर कलरफुल। मतलब इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग ए ट्री थ्रू योर पिन होल कैमरा, देन एक्चुअली उसका ग्रीन पार्ट, उसके सारे कलर्स आपको वो इमेज में क्या करेंगे, दिखेंगे। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेडो एंड उसकी इमेज। शेडो और इमेज ये दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए तो हम यहाँ पे रुकते हैं। ये पिन होल कैमरा आपको क्या करना है, एक्टिविटी में बना के देखना है। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।